In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start again the poem number is 2. Poem 2, Nightmare. And today lecture number is also 2. Okay, before watching this video, you must watch the previous video in order to understand the lecture in a proper way. Otherwise, you will get confused, because most of the things I have told you people in the previous lecture. Okay, this is the night mail crossing the border. ये नाइट मेल है जो कि बॉर्डर को क्रॉस कर रही है. बॉर्डर यहाँ जो मतलब है बॉर्डर बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, द बाउंड्री बिटवीन लंदन और स्कॉटलैंड, और यू कैन से बाउंड्री बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. तो स्कॉटलैंड और लंदन के दरमियान जो बॉर्डर है उसका जिक्र किया गया है, क्योंकि जो नाइट मेल है इसका जो सफर है वो इंग्लैंड लंदन से ये स्कॉटलैंड जाती है, स्कॉटलैंड से ये लंदन आती है. ठीक हो गया. तो यहाँ जो बॉर्डर का वर्ड यूज हुआ है दैट इज यूज्ड फॉर दैट बाउंड्री व्हिच इज बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, और यू कैन से लंदन एंड स्कॉटलैंड. ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, ये चेक लेकर आती है, ये लोगों के पोस्टल ऑर्डर लेकर आती है. तो इस स्टेंजा के अंदर जो शायर है वो नाइट मेल का जो फंक्शन है उसके बारे में बताता है, और बताता है कि इसकी डेस्टिनेशन और सफर कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है. तो ये रात के वक्त चलती है, इस वजह से इसको नाइट मेल कहा गया. मोस्ट ऑफ द टाइम इट ट्रेवल्स एट नाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइट मेल. मेल का तो आपको पता है कि ये पार्सल होता है, पैकेज होता है, लेटर्स, पोस्टल ऑर्डर्स, दिस एंड दैट, इन सबको मेल कहा जाता है, डाक कहा जाता है. ओके, इन दिस couplet I have told you yesterday this poem is written in a form of couplet. तो जब जो पहला couplet है, in this couplet the poet is telling us the function of night mail and the journey of the night mail. The poet says that night mail is the train which travels during night and it moves from London and goes to you can say Scotland, and from Scotland it comes to London. The function of night mail is that it is the source of combining people together. It is a source which has connected different segments of the society together. It brings checks and postal order for the people. It brings checks and postal order for the people, and it moves from London to Scotland and Scotland to London in order to deliver, in order to convey the checks and postal order of various people. Letter for the rich, letters for the poor. ये अमीरों के लिए भी खत लाती है, ये गरीबों के लिए भी खत लाती है. The shop at the corner, ये जो कॉर्नर में शॉप है नुक्कड़ में, उसके लिए भी खत लाती है. द गर्ल नेक्स्ट डोर, और साथ में रहने वाली लड़की के लिए भी खत लाती है. तो नाइट मेल का जो काम है वो कन्वे करना है कोरस्पॉन्डेंस को, लेटर्स को, चेक्स को, पोस्टल ऑर्डर्स को. ठीक है. अब ये जो नाइट मेल है ये जो अमीर हैं, गरीब हैं, ये सबके लिए लेटर लेके आती है. It does not discriminate between the rich and the poor, the high and the low. ये अमीर गरीब बड़े छोटे में कोई फर्क नहीं देखती. ये अपनी जो सर्विसेज हैं वो इंसानों को भी ये गरीबों को भी देती है और अमीरों को भी देती है. ये मुख्तलिफ किस्म के लेटर लेके आते हैं. इट ब्रिंग्स इनफॉर्मल लेटर, इट ब्रिंग्स फॉर्मल लेटर, इट ब्रिंग्स बिजनेस लेटर, इट ऑल्सो ब्रिंग्स लव लेटर्स. तो ये तमाम किस्म के जो लेटर्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है. So in this couplet, the poet is telling us that the night mail gives its service to the human beings by conveying their letters from one place to another place. And it brings all types of letter. It brings formal, informal, it brings business letters as well as love letters. And it does not discriminate between the rich and the poor. It gives its services not only to the rich but also to the poor. So it brings letters and it conveys letters
of the rich people as well as poor people of the society. It also brings business letters for the shopkeeper. It also brings love letters for the girl. So the night mail is giving its services to all the segments and all the sections of society. It brings mail for the various people of the society. Pulling up B talk. पुल अप होता है राइज अप, चढ़ाई चढ़ना, ठीक है. गो अप, असेंड और माउंट, ऊपर चढ़ना. वो कहता है कि पुलिंग अप बी टॉक. अब ये बी टॉक की चढ़ाई चढ़ रही है. बी टॉक जो है दैट इज अ स्टेडी स्लोप. ये एक अमूदी ढलवान है इन स्कॉटलैंड. ये स्कॉटलैंड के अंदर एक अमूदी ढलवान है, ठीक है. एंड इट इज अ यू कैन से स्टेडी स्लोप. ये बिल्कुल ऐसे मुतवाजी वो ढलवान है, ठीक है. तो अब वो कहता है कि जो नाइट मेल है ये बी टॉक के ऊपर चढ़ रही है, उसको अबूर कर रही है, जो कि एक मुसलसल, स्टेडी मीन अनचेंजिंग, कांस्टेंट, स्टेडी मीन कांस्टेंट, अनचेंजिंग, कंटिन्यूअस, जो कि एक मुसलसल चढ़ाई है. लेकिन नाइट मेल जो है वो चढ़ाई पार करती है, उसको ये पार करना है इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए. कहते हैं द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर. जो ग्रेडियंट है, स्लोप है, ढलवान है, वो इसके मुखालिफ पे है, यानी कि ऐसे ढलवान है, ऐसे नाइट मेल को ऐसे मूव करना पड़ता है, ठीक. द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन स्लोप, अगेंस्ट है, इसके मुखालिफ समत में है. बट शी इज ऑन टाइम, लेकिन ये हमेशा वक्त पर पहुंचती है. तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ये बताना चाह रहा है कि जो नाइट मेल है उसका जो सफर है दैट इज वेरी डिफिकल्ट. ये हर्डल्स से, ऑब्स्टेकल से भरा हुआ है. इसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये किसी चीज की परवाह नहीं करती, सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ रवाना रहती है. ये बी टॉक की चढ़ाई भी चढ़ती है, जो कि मुसलसल चढ़ाई है, और ये कभी भी देर इसको नहीं होती. ये लोगों के जो लेटर्स हैं, पार्सल्स हैं, पैकेजेस हैं, चेक्स हैं, पोस्टल ऑर्डर्स हैं, ये टाइम पे पहुंच जाती है. तो जो नाइट मेल है इट इज रेगुलर एंड पंक्चुअल. ये रेगुलर भी है, पंक्चुअल भी है, और स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी भी है, कि ये बड़ी बड़ी ढलवानों को जो ऊंचाई है उनको आसानी से अबूर कर लेती है. तो इन दिस कपलेट द पोएट इज टेलिंग अस दैट एट दिस टाइम द नाइट मेल इज क्रॉसिंग द बी टॉक. बी टॉक इज नॉट एन इजी स्लोप, it is a tough slope to cross because it is continuous and unchanging slope, but the night mail has to cross it in order to reach its destination. So in fact the poet wants to say the journey of night mail is not easy. It's full of hurdles and obstacles, but the night mail does not care at all. It focuses on its journey and reaches its destination on time. It means that it conveys the letters, you can say postal orders, packages, parcels of the people in time, and it is never late. So that is the quality of night mail. It is not lazy like human beings. ठीक है? It is punctual and regular. Human weaknesses like laziness and lethargy are unknown to her. So night mail is moving continuously. It is not stopping at any place. It is regular and punctual and it moves continuously. तो इंसानी जो कमजोरी है कि इंसान सुस्त होता है, स्लगिश हो जाता है, लेकिन ये नहीं होती. ये मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ रवाना रहती है. स्नॉर्टिंग, ओके, पास्ट कॉटन ग्रास. ये कॉटन ग्रास से गुजरती है. कॉटन ग्रास का मतलब कॉटन प्लांट नहीं है, कपास का पौधा नहीं है. कॉटन ग्रास का मतलब ऐसा घास जिसके ऊपर जो कॉटन का जैसा फूल होता है, वो फूल जो लगता है उस घास के ऊपर भी उस जैसा रिजेम्बलेंस रखता है वो फूल जो के कॉटन ग्रास के ऊपर होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉटन ग्रास, नॉट कॉटन प्लांट. तो ये कॉटन ग्रास से गुजरती है. एंड मोरलैंड बोल्डर. ये मोरलैंड कहते हैं दश्त को, अनकल्टिवेटेड लैंड को, हीथ को, ठीक है. तो ये अनकल्टिवेटेड लैंड से गुजरती है. बोल्डर कहते हैं गोल पत्थर को, ठीक है. अब राउंड पीस ऑफ रॉक और यू कैन से स्टोन.
ठीक हो गया, स्टोन और रॉक और राउंड पीस ऑफ रॉक, ठीक हो गया। ये यहां से वहां से गुजरती है। शोवलिंग वाइट स्टीम, और ये सफेद धुआं छोड़ती है। शोवल होता है डिस्चार्ज करना, इमिट करना, खारिज करना, ओवर हर शोल्डर, अपने कंधों पर से। तो इन दिस कपलेट द पोएट इज टेलिंग फ्रॉम वेयर द नाइट मेल पासेस। तो इट पासेस फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। इट पासेस फ्रॉम द cotton grass, it passes from the meadows, grassy fields and grasslands and pastures, and it also passes from the rocks, and it continues moving. It does not stop at any place. And the poet says that it is emitting, it is discharging a lot of smoke behind her shoulder, behind its shoulder. In fact, the poet wants to say sometimes night male has to use a lot of energy in order to cross the difficult path. And when it has to cross the difficult path, then it uses a lot of energy. And when it is using a lot of energy, a lot of smoke is discharged, a lot of smoke is emitted. Got it? Snorting noisily she passes. Snort होता है फंकारना, खराटे लेना, ठीक है। तो स्नॉटिंग जो है दैट इज द क्वालिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये जानदार चीजें स्नॉट करती हैं, फंकारती हैं, खराटे लेती हैं। तो यहाँ जो नाइट मेल के लिए स्नॉटिंग यूज किया गया है, इसका मतलब है विसल, सीटी बजाना। ये जो नाइट मेल है, स्नॉट में स्क्रीम करना, विसल करना, ठीक है। अब ये जो स्क्रीमिंग है या क्राइंग है या स्नॉटिंग है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। बट द पोएट इज गिविंग दिस क्वालिटी टू नाइट मेल, जो कि नॉन लिविंग है। तो ये पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? आई हैव टोल्ड यू यस्टरडेज लेक्चर। तो पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है यहाँ। तो यहाँ जो स्नॉट का मतलब है, इट मीन्स टू विसल। तो नाइट मेल जो है जब वो मूव कर रही होती है तो ये स्नॉटिंग करती है। स्नॉट दो वजह से करती है, यानी कि इट विसल्स, इट गिव्स विसलिंग टू द पीपल, ठीक है, जो किससे रास्ते में आते हैं। एक तो ये लोगों को इन्फॉर्म करती है अबाउट इट्स अराइवल, कि मैं आ गई हूं, तो विसल बजाती है। दूसरा, वो लोग जो चीजें जो उसके रास्ते में आ जाती हैं उनको भी वार्निंग देने के लिए वो विसल करती है, सीटी बजाती है। अच्छा जी, यानी कि वो शोर मचाते हुए गुजर जाती है। साइलेंट माइल्स, कई मीलों का सफर खामोशी से कर लेती है। ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, विंड बेंट ग्रासेस जो है इसका मतलब होता है पास्चर्स, मैडोज, ग्रासी लैंड्स, ठीक है। तो ये चरागाहों से, सब्जाजारों से और ग्रासी जो फील्ड्स हैं, खेत के मैदान, ग्रास खेत, घास के जो मैदान है उनमें से गुजरती है। कभी तो ये शोर मचाते हुए सफर करती है और कभी मीलों का सफर खामोशी से तय कर लेती है। तो इसमें एक तो पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, स्नॉटिंग से इंडिकेट होता है। दूसरा, इसके अंदर ट्रांसफर्ड एपिथेट भी यूज हुआ है। आई हैव टोल्ड यू यस्टरडेज लेक्चर, ट्रांसफर्ड एपिथेट भी यूज हुआ है, जिसमें साइलेंट जो है ये एक एपिथेट है, ये एक एडजेक्टिव है। तो ये माइल्स के साथ नहीं आना चाहिए था, कहां आना चाहिए था? विंड बेंट ग्रासेस के साथ, लेकिन शायद किसके साथ यूज कर रहे हैं? तो दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट यही था ना, इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड from its proper word to an other word which is closely connected to it. तो यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी यूज हुआ है। कंपाउंड वर्ड्स का भी पोएट ने यूज किया है, ठीक है। विंड बेंट ग्रास, दैट इज अ कंपाउंड वर्ड, ठीक है। अब इसको इन दीस लाइन्स द पोएट इज टेलिंग हाउ द नाइट मेल runs or moves. Sometimes it covers distance by making a lot of noise. And sometimes it covered the distance of many miles silently without making any noise. And it passes from grasslands, meadows and pastures. And it does not make any noise there. And sometimes it makes a lot of noise. The poet in fact wants to say, when he uses the word snorting, it means the night meal gives whistle in order to inform the people about its arrival. And it also, the night meal also whistles
in order to give the warning to the things and the people which or who come on its way, जिसके रास्ते में लोग आ जाते हैं उनको वार्निंग करने के लिए कि वो हट जाए. तो in this stanza the poet has used different type of poetic techniques. He has used personification. He has given the quality of living things to the night male when he uses the word snorting. ठीक हो गया? Is it clear to all of you? And he has also used transferred epithet when he uses the word silent with miles instead of with wind bent grasses. The poet has also used compound words in this couplet. ठीक है? तो जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, कंपाउंड वर्ड्स यूज हुए हैं और ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी यूज हुआ है. Birds turn their heads as she approaches. अब तीसरा पार्ट में हमने क्या कहा था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नाइट मेल ऑन डिफरेंट थिंग्स और ऑन द पीपल, कि नाइट मेल का इफेक्ट क्या होता है दूसरी चीजों के ऊपर. तो उसमें हमने देखा था कि बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस. परिंदे अपनी चोंचों को मोड़ लेते हैं जब वो पहुंचती है. अप्रोचेस मीन रीचेस. स्टेयर फ्रॉम बुशेस, वो झाड़ियों में से घूरते हैं. एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, इसकी जो ब्लैंक फेस्ड कोचेस है, ब्लैंक का मतलब होता है, ब्लैंक फेस्ड का मतलब है अनऑक्युपाइड, खाली, वैकेंट, एम्प्टी. इसका मतलब ये भी है कलरलेस और डल. ठीक हो गया? बेरोनक. कहते हैं कि परिंदे जब ये पहुंचते हैं तो परिंदे अपनी चोंचों को मोड़कर इसे देखते हैं झाड़ियों में से, और वो इसकी जो अनऑक्युपाइड या खाली जो बोगियां हैं उनको देखते हैं. यानी कि नाइट मेल के आने की वजह से बर्ड डर के उड़ नहीं जाते. ठीक है? ये बर्ड जो है वो झाड़ियों में बैठे रहते हैं और जो नाइट सिर्फ अपने सर को मोड़कर उसकी जो अनऑक्युपाइड सीट्स हैं उनको, बोगी हैं, उनको देखते हैं. Birds turn their heads. ओके हो गया. Sheep dogs cannot turn her course. जो sheep dogs हैं वो इसके रास्ते को तब्दील नहीं कर सकते. कोर्स का मतलब होता है पाथवे. Sheep dogs are the dogs which are trained to take care of sheep. वो कुत्ते जिन्हें भेड़ों की हिफाजत के लिए ट्रेनिंग की दी जाती है उनको शीप डॉग कहा जाता है. तो जो शीप डॉग्स हैं वो इसके रास्ते को नहीं बदल सकते. दे स्लम्बर, वो सोए रहते हैं. स्लम्बर मीन टू स्लीप. ठीक है? विद देयर पोज अक्रॉस, अपने पांव को फैलाए हुए. पोज का मतलब है, या पास और पोज, फीट, पांव. ओके जी. यानी कि जो शीप डॉग्स हैं उन पर भी नाइट मेल का कोई असर नहीं होता. वो इसके आने से डिस्टर्ब नहीं होते. वो इसकी आवाज के आदी हो चुके हैं. Okay, we are going to do the explanation of these two couplets together. So in these two couplets, the poet is telling us the effects of night mail on different things. First of all, he tells us about the birds. When the night mail approaches near the birds, birds don't get disturbed. They don't frighten. They keep sitting in the bushes and they just turn their beaks and look at the unoccupied seats or carriages of night mail. The poet wants to say night mail is not a source of disturbance for anything. It is not a source of disturbance for the birds, and the birds have become habitual to its voice, to its noise. वो इसके शोर के आदी हो चुके हैं नाइट मेल के, तो वो इससे डिस्टर्ब नहीं होते. In the other couplet, the poet is telling the effect of train night mail on the sheep dogs. Sheep dogs are the dogs which are trained to take care of sheep. When the night mail approaches near the sheep dogs, they don't get disturbed. They know it very well. They can't bite night mail and they can't stop the path of night mail. So they keep on sleeping by spreading their feet. So the night mail is not a source of disturbance for the dogs as well. Dogs have also become used to its noise. Okay, last couplet, look at the last couplet. In the form she passes, ये फार्म से गुजरती है, यानी कि वो घर जो कि फार्म हाउसेस खेतों में होते हैं, गांव में होते हैं. ठीक है? जब ये फार्म हाउसेस से गुजरती है, नो वन वेक्स,
तो कोई शख्स भी नहीं जागता, वेक्स होता है गेट अप, ठीक है। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, लेकिन बेडरूम में पड़ा हुआ जग थोड़ा सा शेक होता है, थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो इसमें जो पोइट है वो हमें नाइट मेल का असर बता रहा है कि इंसानों पे क्या होता है, ह्यूमन लाइफ पे इसका क्या असर होता है, उन लोगों पे क्या असर होता है जो कि गांव में रहते हैं या फार्म हाउसेस पे रहते हैं, जिनका घर रेलवे ट्रैक के साथ होता है। तो वो लोग भी इसकी आवाज से डिस्टर्ब नहीं होते, वो आराम से सोए रहते हैं क्योंकि वो इसकी आवाज के आदी हो चुके हैं। तो नाइट मेल जो है वो इंसानों के लिए भी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज डिस्टर्ब होती है, वो क्या है, वो है जग, जो कि बेडरूम में पड़ा होता है। नाइट मेल की वाइब्रेशन की वजह से वो भी थोड़ा वाइब्रेट करता है, थोड़ा सा शेक करता है, थोड़ा सा हिल जाता है। तो इन द लास्ट कपलेट द पोएट इज अगेन टेलिंग अस द इफेक्ट ऑफ नाइट मेल on the people who live in the farmhouses. The poet says that people who live in the farmhouses, they don't get disturbed because of the arrival of the night mail. They don't wake up, they keep on sleeping because they have become habitual of the noise of the night mail. So they don't get disturbed. So night mail is not a source of disturbance for the human beings who live in the farmhouses. The poet says that only one thing is affected a little bit, that is a jug, which is in a bedroom that vibrates a little bit because of the vibration created by the night mail. When the night mail is passing, vibration is created, so the jug in a bedroom vibrates or shakes a little bit. So night mail is not a source of disturbance for anything. ठीक हो गया? तो इसमें जो नाइट मेल है, that is a symbol of, symbolism का भी यूज हुआ इसके अंदर। नाइट मेल जो है दैट इज द सिंबल ऑफ ह्यूमन लाइफ विच पासिस फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट फेजेस इन ऑर्डर टू रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज डेथ। नाइट मेल जो है वो भी इंसानी जिंदगी की अलामत, इंसानी जिंदगी भी मुख्तलिफ फेजेस से गुजरती है और गुजरने के बाद आखिरी एंड जो होता है डेथ, उससे जाके मिल जाती है। ठीक हो गया? तो जो नाइट मेल है उसके रास्ते में भी हर्डल्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, इंसान की जिंदगी में भी रुकावटें, हर्डल्स आती हैं। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि नाइट मेल जो है दैट इज द सिंबल ऑफ ह्यूमन लाइफ व्हिच पासेस फ्रॉम डिफरेंट फेजेस इन ऑर्डर टू रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन और डेस्टिनी, दैट इज डेथ। द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज दैट अ मैन शुड बी लाइक नाइट मेल बिकॉज नाइट मेल is not a source of disturbance for anybody and it is extending its valuable services to the humanity. इंसानों को ये अपनी वैल्यूएबल जो सर्विसेज हैं वो दे रही है, ठीक है। इट इज सर्विंग द ह्यूमैनिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन रिच एंड द पुअर। गरीब है अमीर है उनकी खिदमत कर रही, तो इंसान को भी ऐसा होना चाहिए। He should serve the humanity without discriminating between the rich people and the poor people. ठीक है। दूसरा जो नाइट मेल के अंदर खूबी है वो ये है, इट गिव्स अस अ मैसेज दैट अ मैन शुड बी रेगुलर, पंक्चुअल एंड ही शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। नाइट मेल जो है वो रेगुलर है, पंक्चुअल है, स्टर्डी है, ताकतवर है, ठीक है। ये अपना काम टाइम पे करती है, रेगुलरिटी से करती है, पंक्चुअलिटी से करती है, ये थकती नहीं है, इट कीप्स ऑन वर्किंग। तो अ मैन शुड बी लाइक नाइट मेल, ही शुड बी रेगुलर, ही शुड बी पंक्चुअल and he should be strong and sturdy. Got it? So this is all about the poem. Do you have any question? Okay, in order to understand this lecture number 2, you will have to watch my first video, that is about lecture number 1. Both are connected together. Otherwise, you won't be, if you will watch only one video, you won't be able to understand the proper concept of this poem. Okay, ji, thank you. Allah Hafiz. Take care.